اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ میں سید اعجاز حسن کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہے میں جن بات کا جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انسانی فطرت میں رہتی ہیں، ایک ہے بخالت، بخیل، جسے ہم ہمیشہ بولتے کہ یہ بہت بخیل ہے، یہ بخیل، مگر اس سے بھی آگے ایک چیز ہوتی ہے لئیم۔ ہاں، بخیل، اس کے بعد لئیم۔ لئیم کی کیا ہے؟ حروف لام عین یہ میم، لئیم۔ تو اس کا ہم فرق دیکھیں گے۔ پہلے بخیل کا دیکھیں گے۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل وہ شخص ہوتا ہے، بخیل وہ شخص ہوتا ہے جو صرف اپنے ہاتھ میں موجود چیز، اپنے ہاتھ میں جو موجود چیز ہیں کو خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ نہیں، میں نے خرچ کیا ہے۔ وہ اپنی ملکیت میں موجود اشیاء کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے یا ان پر خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ کہیں کو میں خرچ کروں، یعنی اسٹنگنس کو دخل ایک کو، یعنی بخیل دخل کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے، جہاں فرد اپنی دولت کو کھلے دل سے خرچ کرنا ناپسند کرتا نہیں کرتا انہیں کھلے دل سے خرچ کرنا ناپسند کرتا ہے، خاص طور پر اگر اس سے وہ دوسروں کے مقابلے میں کمتر نظر آئیں۔ اب اس وجہ سے بھی ایسے لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنی دولت چھپاتے ہیں، یہاں تک کہ بظاہر غریبانہ زندگی گزارتے ہیں تاکہ شخص سے بچ سکے۔ کیا کرتے ہیں لوگ جو تو دیکھیے، تو غریب والے بالکل سادے کپڑے پہنیں گے، سادے وہ کریں گے۔ ہاں، یہ جو ہے تو اکثر ایسے لوگ جو ہے تو اس حال میں رہتے۔ اب امام علی علیہ السلام کے مطابق ایک بخیل شخص نیک اعمال سے باز رہتا ہے۔ بخیل جو رہتا ہے اس کے سے نیک اعمال کرنا جو تو محال ہوتا ہے، نیک اعمال کرنے سے باز رہتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا۔ کبھی بخیل زکوٰۃ ادا کرتے نہیں دیکھیں گے ہم۔ صدقہ کرنا، صدقہ دینا لوگوں کو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب بخیل نہیں کر۔ یہ بخل کو ایک زیادہ سنگین جرم بناتا ہے۔ یہ کام جب نہیں کرتا ہوں تو اس کی جو بخالت ہے وہ ایک سنگین جرم بن جاتی ہے، کیونکہ یہ جنت میں داخلے سے روک سکتا ہے۔ بخیل کی بخالت جو ہے تو اس کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے۔ بخل کی یہ عادت اپنے مالک کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے۔ یہ جو ہے تو، اور جو شخص اس سے روگردانی کرتا ہے اس کا مقام بلند کرتی ہے۔ جو یہ بخالت سے دور رہتا ہے اس کا مقام بلند کرتی ہے۔ اسے تمام برائیوں کا مجموعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ تمام برائیوں کا مجموعہ، کیا بخالت، اور یہ لوگوں کی وہ برائی کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ برائی قرآن مجید میں بھی بخل کی مذمت کی گئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر بھی تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخیل ہیں، اور جو بھی بخیل ہے وہ صرف اپنے ہی خلاف بخیل ہے۔ اب اس کے بعد ہم جو تو بخالت کا ہوگا، اب لئیم، اب اس کو انگریزی میں مائزر بولیں گے، سمجھیے۔ اب یہ مائزر کے بارے میں، یہ جو تو یہ کیسی خصلت ہے لئیم، یہ بخل سے زیادہ جو تو شدید خصلت ہے، بخل سے بہت ہی اس سے بھی بری ہے۔ لئیم یعنی لام عین یہ میم، آپ کو برابر بتا رہا ہوں کہ یہ الگ جو آپ کبھی سنتے نہیں لفظ ہے۔ بخل سے زیادہ بھی شدید خصلت ہے۔ ایک لئیم وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ملکیت میں موجود اشیاء کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ہاتھ میں موجود اشیاء پر بھی حفاظتی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اپنی تو وہ کر رہا ہے، دوسرے کی طرف بھی نظر اس کی ہے۔ ایسا شخص دوسروں کے مال و دولت کا لالچ کرتا ہے، میرے کو بھی ویسا ہونا، میرے کو بھی ہونا چاہیے، لالچ کرتا ہے۔ جو کچھ بھی اسے دیا گیا ہے اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ جتنا بھی ملا، میرا اتنا گھر ہے 2 منزلہ، اس کا 4 منزلہ، اس میں مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسروں کی چیزوں کو بھی اپنا بنانا چاہتا ہے۔ وہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے۔ جائز ناجائز کچھ بھی ہو، وہ سمیٹ لو، کھینچ لو، لے لو۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے تو روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا لئیم کون ہے،
आपसे भी पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया लईम बुखल से ज़्यादा शदीद है। एक बखील अपने हाथ में मौजूद चीज़ों को रोकता है। बखील क्या कर रहा है, उसके पास जो है वो रोकता है, हैं? लेकिन एक लईम दूसरों के हाथ में मौजूद चीज़ें जो दूसरों के पास भी हैं, चीज़ों और अपनी मिल्कियत में मौजूद चीज़ों पर भी हिफाजती रवैया अख्तियार। दूसरा भी अगर कोई खर्च कर रहा है नेक काम में, अरे काहे को कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है, सब अच्छा है ना, सब चल रहा है ना, मस्जिद भी चल रही, सब चल रही, खबरस्तान चल रहा है, चल रहा, काहे को किसको बोलता हूँ, जो दूसरा खर्च कर रहा है ना उसके माल को भी खर्च करना नहीं चाहिए। ये लईम है। खुद का तो करता ही चाहिए, खुद की तो हिफाजत करता है, और दूसरे की जो है तो उसकी उन्हें जो तो हिफाजती रवैया अख्तियार करता है, इसमें बताया। हाँ, दूसरों के हाथ में मौजूद चीज़ों पर अपनी मिल्कियत में मौजूद चीज़ों से भी हिफाजती रवैया अख्तियार। वो दूसरों के कब्ज़े में कोई चीज़ नहीं दिखता, मगर ये कि इसे अपना ना बना, दूसरों के कब्ज़े में देखना नहीं चाहता, वो उसको भी अपनी बन जाए वो चीज़, ये उसकी जो तो फितरत है। एक लईम की जो और मज़ीद क्या क्या रहती है, लईम की खुसूसियात ही बताए। वो अपनी दौलत पर वाजिब ज़कात अदा नहीं करता, जो वाजिब अल्लाह ताला ने किया 2.5% दिया, जो भी चीज़ों पे है ना वो अदा नहीं करता। अपने लोगों में से ज़रूरतमंदों को कुछ नहीं देता, अपने रिश्तेदार हैं ज़रूरतमंद हैं नहीं देता, चाहे वो दूसरी चीज़ों पर दिल खोल कर खर्च करता। खुद जो तो लईम क्या करेंगे, अपना खाएगा, वो मस्त खा रहा पी रहा कर रहा है, ऐश कर रहा, मगर अपने जो तो ज़रूरतमंदों को उसमें से कुछ खर्च नहीं करता। वो शख्स जो हराम ज़राए से दौलत कमाता है और इसे गलत तरीके से खर्च करता है, ये लईम ऐसा भी रहता है। वो शख्स है जो कि हराम ज़राए से दौलत कमाता है और इसे गलत तरीके से खर्च करता है। लईम वो है जो सलाम करने में भी कंजूसी करता है। वो तो है मैं तो बड़ा हूँ, छोटे ने पहले करना था, है मैं क्या क्यों करूँ उसको। हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है, छोटा हो बड़ा हो सलाम में पहल करना चाहिए, और उसमें भी उन्हें कंजूसी करता। लईम वो है जो सलाम करने में भी कंजूसी करता। मौला क्या बता रही है। और एक मुसलमान के पास से गुजर कर इसे सलाम ना करने वाला शख्स लोगों में सबसे ज़्यादा लईम समझा जाता है। एक मुसलमान के बाजू से गुजर रहे हैं, बड़ा हो छोटा हो, सलाम नहीं करते अखड़ के चले गए, तो सबसे ज़्यादा जो तो यानी गुजर कर सलाम न करने वाला शख्स लोगों में सबसे ज़्यादा लईम ये सबसे ज़्यादा लईम है। ये लईमों में सबसे ज़्यादा लईम जो अल्लाह के वाजिब करता चीज़ों पर कंजूसी करता है, वो सबसे ज़्यादा लईम है। ये तो इंसानों में तो अल्लाह ने वाजिब किया है, अल्लाह जो करना कहा है उसमें भी नहीं करता, तो वो सबसे ज़्यादा लईम का कोई महबूब नहीं है, उन्हें बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं रहता, उसका कोई महबूब नहीं है, जिसका मतलब है कि इनका रवैया माशरे की तन्हाई का बायस है। बिल्कुल अल्लाह ठलक पड़ा रहता है, उसका कोई दोस्त रहता है। कंजूसी करने वाला असल अपनी ही रूह को जो है तो अलग अकेला कर लेता है, यानी अपने ही रूह के साथ उन्हें जो तो यानी रूह की तकलीफ़ का बायस बन सकता है। हाँ, कंजूसी करने वाला दरअसल अपनी ही रूह के ख़िलाफ़ कंजूसी करता है, जिसके इसके रूहानी वजूद पर मनफी असरात मुरतब है। उसका रूहानी वजूद खराब है, बेकार हो जाता है। रूहानी वजूद में जो तो असर होता है बखील के और कंजूस के आदमी। लईम शख्स को की ज़हनियत अक्सर गुर्बत के खौफ से पैदा मैं अरे कल को कहाँ पैसे नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कल के हाथ से में रखना पड़ेगा। लईम क्या करता है, ये करता है गुर्बत का उसको हमेशा ये तो खौफ रहता, कल गरीब होगा तो क्या होगा। हाँ, ये लईम शख्स की ज़हनियत अक्सर गुर्बत के खौफ से पैदा होती है, लेकिन ये रवैया दरअसल इसे गुर्बत और मोहताजी की तरफ ले जा सकता है, और मोहताजी और गुर्बत की तरफ जाता है। उन्हें गुर्बत के खौफ से जो तो लईम बनता, और लईम बनने की वजह से और उसको अल्लाह ताला गुर्बत की जगह, यानी बुनियादी फ़र्क का जो खुला सिर्फ बखील क्या है, ये स्टिंगी पर्सन सिर्फ अपनी मिल्कियत में मौजूद चीज़ों को रोकता है। ये पहली बात। बखील क्या है, अपने पास जो चीज़ है, अपना पैसा अपना ये वो उसमें रखता है। लईम क्या है, ये माइज़र अपनी मिल्कियत में मौजूद चीज़ों के साथ साथ दूसरों की मिल्कियत में मौजूद चीज़ों का भी लालच करता है, समझे ना। एक तो वो है जो कंजूस है, हाँ, उन्हें क्या करता, बखील है, उन्हें अपनी जेब का पैसा नहीं खर्च कर दिया है। और लईम वो है इतना ऐसा माइज़र है कि उन्हें अपनी चीज़ों का तो करता ही करता,
दूसरों की मिल्कियत में मौजूद चीज़ों का भी लालच होता है। वो चीज़ मेरे पास होना, उन्हें कुछ खर्च नहीं करना, उन्हें इसमें नहीं डालना, उन्हें बाखानों में नहीं डालना, उन्हें ये इसमें नहीं डालना, वो मेरे को देना चाहिए था। वो मैं ज़्यादा ज़रूरत ऐसा उसकी दे। और इन पर भी कंजूसी का रवैया अख्तियार करता है। ये बुखल का एक ज़्यादा शदीद और जामे शक्ल है। अब ये जो तो इसमें हवाले जात वगैरह दिए हुए हैं। अब मैं आपको जो है तो इसके अलावा वो आयतें तो कुरान में वो आयतें हैं जिन आयतों में जो है तो बखील के बारे में कुरानी आयत कौन सी हैं। सबसे पहले सूरह निसा की आयत है, उसका तर्जुमा सुनाता हूँ मैं। आयत सूरह निसा जो तो सूरह निसा कौन सा चौथा सूरा है और उसकी 37वीं आयत में है। उसका तर्जुमा जो है, जो खुद भी बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, और तुम भी क्या खर्च कर ऐसा करते हैं, और अल्लाह ने जो अपने फजल से इन्हें दिया है इसे छुपाते हैं। और हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार रखा। ये काफिराना हरकत है। अल्लाह ताला इनके लिए हमने ज़िल्लत का अज़ाब, ये सूरह निसा की जो चौथा सूरा उसकी 37वीं आयत है। अब उसके बाद जो तो हम दूसरा देखेंगे सूरह निसा के बाद, सूरह निसा के बाद जो तो आपको ये सूरा जो है सूरह आले इमरान की 180वीं आयत है। उसका तर्जुमा सुनिए। जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल में बुखल करते वो हरगिज़ न समझें कि ये इनके लिए बेहतर है, बल्कि ये इनके लिए बुरा है। जिस चीज़ में उन्होंने बुखल किया था, क़यामत के दिन वही इनके गले का तोग बनने है। सही, इतना बड़ी आयत है ये जो तो सूरह आले इमरान। उसके बाद सूरह तौबा की आयत है। सूरह तौबा 9वां सूरा है। सूरह इमरान जो तो तीसरा सूरा था, ये सूरह तौबा की 34वीं आयत है। और अब ये देखो तौबा, ये बहुत ख़तरनाक आयत है। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। यही जो है तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी यही आयत तिलावत करते थे, तो उनको जिलावत किया गया, माविया ने उनके लिए तकलीफ दी। तो ये आप समझ गए कि बखील और लई, ये दो, ये हमारे माशरे में बहुत कोई लोग रहते हैं। आप जो भी काम करने गए, आप अपने पैसे से भी करें तो जो लईम शख्स क्या करेंगे, बोले ये क्यों करो, वो दूसरों को भी कुछ करने नहीं देता। ये जो है तो सबसे बड़ी जो है तो एक आदत है किसकी, लईम की। और वो खुद भी नहीं करता, दूसरों को भी नहीं करने देता। दूसरों के पैसों पे, दूसरों के माल पे, दूसरों के जायज़ नाजायज़ फिर वो हड़पना चाहता है। ये माशरे में जो लोग हैं इनसे दूरी इख्तियार करना चाहिए, उनको माशरे से अलग करना चाहिए, उनको आइसोलेट करना चाहिए। और वो खुद आइसोलेट भी अपनी हरकतों की वजह से हो जाते हैं। ये मुख्तसर सा जो तो मैंने एक बखील और लईम की जो तो आपको तफरीक बताया। आप अपने माशरे में ऐसे लोगों से वाकिफ़ हुए और आप अपने नेक कामों में जो है तो रुकावट इनकी वजह से न करें। आप नेक काम करते रहें, अल्लाह आपको अजर देगा और उसके जो तो आखिरत में उसको फ़ायदा होगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।